Sujit, can you hear my voice? Sujit, Rishikesh, my voice is audible. Okay, so just an interesting topic is there today. Okay, beyond the class, I will share the notes now. If you are not visible that notes particular, then you have to tell me. Huh? If it is visible, then also please reply. Visible? Hello. Okay, my voice is clear now. So see, this is an gravity die casting is there. Okay. So in this model number 2 at the morning class we also discuss regarding what is the model number 2. In this the metal molds are been prepared in spite of the sand. Okay. So this is one of the metallic mold is there. Okay, which works on the gravity force. Okay, and the gravity is been taken as a support for the movements of the molten metal. Is the diagram is visible to you all? Diagram is visible. Hello, please reply. Diagram is visible. Okay, so you can see in this diagram there are the two. This overall, this one is an. Just I am not getting the marker over here. It is slightly rotating. I don't know what is happened to this. Okay, now you can see the diagram. So see in this diagram there are the two metallic locking box are there. Okay, in this these are the metallic box are there. In this metallic box, in this
in this metallic box you can see with an some gravity is been prepared inside this one, okay, that is in a U shape gravity is there, okay, and the risers and the pouring cups are there, and the post with an hinge is there, okay. Over here there is a hinge in the door, you can see the hinge is there for the opening and the closing, just like a door it works, okay, and a clamp is been given for that one. Okay, now this is a completely made of an metal, okay. This molding box, both the molding box are been joining with each other by the clamp, you can see over here there is a clamp is there. Okay, so the clamping is given, metal mold is there, this side is an one half mold is there, and this side is an another half mold is there. At the center there is a rod is given, for that rod the hinge is been placed, the same hinge which is there in for the opening and the closing of the door, okay. So the runner and riser you can see over here, and there is an cavity is been given to this metallic rod over there, okay, and the pouring cup is also there from where the molten metal is poured. Now let us see what is the procedure and how this metallic mold casting is be done. देखिए ये जो दोनों मेटल के बॉक्स रहता है, मेटल के बॉक्स के अंदर ही आप देख सकते हैं वहाँ पे कैविटीज जनरेट किया है, कैविटीज जो ग्राइंडिंग और मशीनिंग से ग्रेविटी जनरेट किया, उसके बीच में एक रॉड है, रॉड को एक हिंज का सपोर्ट दिया है, हिंज का सपोर्ट जो अपने डोर को हिंज रहता है ओपन एंड क्लोज करने के लिए, उस तरह से हिंज का सपोर्ट दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेटिंग पिन दो है और एक लॉकिंग पिन है, और यहाँ पे एक क्लैंपिंग है। जो लोकेटिंग पिन से डायरेक्ट सेकेंड बॉक्स के अंदर वो पिन जो होल के अंदर इंसर्ट हो जाती है, जब वो इंसर्ट होती है होने के बाद दो टोटल मेटेलिक बॉक्स जो है लॉक हो जाता है, मतलब क्लोज्ड हो जाता है, ओके। अभी इसका प्रोसीजर आप देखेंगे किस तरह से इसका कास्टिंग निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द कास्टिंग। इन दिस कास्टिंग देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, ओके। इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं। कौन कौन से स्टेप्स है पापा? तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है, जो मोल्डिंग बॉक्स है उसको थोड़ा प्री हीट करना चाहिए, उसको थोड़ा प्री हीट करने से पहले रबर वायर ब्रश, जो वायर का जो ब्रश रहता है, मेटेलिक ब्रश रहता है। कैन यू हियर माई वॉइस नो? आपको सुनाई दे रहा है? ओके। जो मेटल का जो ब्रश रहता है जो आप पेंट वेंट करते हैं उसी तरह का सेम ब्रश, सेम लाइक दिस वे देर इज एन ब्रश इज देयर, बट it is made of a thin wire metallic, okay, because you are rubbing the metal, so you should also use the metallic brush over there. With that metallic brush all the dust or any unwanted particles are there, that has been removed from that cavity place area within the molding box. This is the first step. Then the second step, what is the second step? With the help of an gas और एनी फायर फ्लेम, ओके। एक फायर फ्लेम जो गैस का रह सकता है और किसी अदर यूजेस का रह सकता है, किसी से आप गैस जो जनरेट करते हैं, आइदर इट मे बी द लिक्विड पेट्रोलियम गैस और एरोगन विथ एन ऑक्सीजन मिक्स्ड गैस इज देयर, ओके, विथ एन हाई फ्लेम नोजल। हाई फ्लेम नोजल मतलब जो नोजल से जो हाई फ्लेम आता है उसका गैस फायर का जो फ्लेम आता है उससे इसको प्री हीट करते हैं। प्री हीट मीन्स व्हाट? एडवांस हीटिंग बिफोर पोरिंग द मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल पोर करने से पहला उसको हीट करते, उसको गर्म करते। वंस इट हैज बीन प्री हीटेड देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट दे डू, पुट सम अंदर क्या करते हैं, थोड़ा लुब्रिकेशन ऑयल डालते, दैट इज द नेक्स्ट। द लुब्रिकेशन ऑयल इज बीन
इंसर्टेड इन दैट वन, द बॉक्स इज बीन क्लोज्ड, ये दोनों को क्लोज कर देते बॉक्स को, और उसका जो क्लैंप रहता है उसको क्लैंप लगा के टाइटली फिक्ट कर देते. देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वॉट एवर द पोरन मोल्टन मेटल इज देयर दैट इज बीन पोर्ड बाय द पोरिंग कप. ओके, पोरिंग कप में पोर करते हैं, पोर करने के बाद वो पूरा कैविटी फिल होने के बाद राइजर से बाहर आ जाता है. तो इस हिसाब से कास्टिंग का सॉलिडिफिकेशन, मोल्टन मेटल को सॉलिडिफिकेशन के लिए अलाउड कर देते हैं. देन आफ्टर फ्यू टाइम्स और द फ्यू सेकेंड्स और फ्यू आवर्स, वॉट एवर द सॉलिडिफिकेशन, हर एक मेटल का सॉलिड होने का टाइमिंग रहता है, सेकेंड में होता है, कोई मिनट में होता है, कोई 1 घंटा लगाता है वो सॉलिड होने के लिए. जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू दैट मेटल द सॉलिडिफिकेशन कैरिड आउट्स. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट दे डू, दे ओपन द क्लैम्प, वो बॉक्स को ओपन करते हैं. ओपन करने के बाद आप नीचे देख सकते हो सॉलिडिफाइड कास्टिंग, सॉलिडिफाइड का कास्टिंग जनरेट कास्टिंग बिकॉज द फ्लो ऑफ द मोल्टन मेटल इज बीन completely controlled by the gravity. ओके, जो उसका जो फ्लो रहता है, यू कैन सी फ्रॉम द पोरिंग कप it comes to the riser, is totally controlled by the gravity, as well as the lubrication is sprayed, as well as the lubrication is sprayed within this die, which also helps to make these types of solidified casting. Now you can see here the mold is being sprayed with a lubricant and closely for the next casting. Okay, and for the preheating since makes the previous casting sufficient to maintain the temperature. उसका जो कास्टिंग का टेम्परेचर प्रीहीटिंग से मेंटेन हो जाता है और ग्रेविटी से उसका फ्लोएबिलिटी इंक्रीज होता है, एज वेल एज बाय द लुब्रिकेशन. ओके, अभी थोड़ा इसका एडवांटेज देखेंगे, गुड सरफेस फिनिश आता है उसके कंपेयर टू द सैंड, बिकॉज सैंड का मोल्ड जो रहता है वो थोड़ा रफ रहता है, सैंड के पार्टिकल्स जो आते हैं उसकी वजह से थोड़ा कास्टिंग रफ आता है. और अभी इसमें मेटेलिक डाई कास्टिंग में और द ग्रेविटी डाई कास्टिंग में सरफेस फिनिश फाइन रहता है, एंड क्लोज डायमेंशन, यू गेट द एक्यूरेट डायमेंशन कंपेयर टू द सैंड. ओके, सूटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कास्टिंग निकाल सकते हो विद इन द मिनिमम टाइम, because the sand casting required a more time, because the preparation of the sand mold takes a lots of time. Okay, that is the main time consumption phenomena in the foundry, preparation of the sand casting. Then occupies the less फ्लोर एरिया, उसको थोड़ा जगह कम लगता है, उसको सैंड कास्टिंग को जगह थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर एक बॉक्स एक ही टाइम यूज़ करते हैं उसको सैंड मोल्ड को. सो उसके जो डुप्लीकेट्स कॉपीज़ रहते हैं उसको 150 टू 250 जितना क्वांटिटी में रहेगा उसका मैक्सिमम मोल्डिंग बॉक्स लगाना पड़ता है मेटल पोर करने के लिए. इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक दो में आप सेम रिप्लिका, सेम डुप्लीकेट कॉपीज जनरेट कर सकते हो. सो दिस आर द सम ऑफ द एडवांटेज. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज, इनिशियल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मोल्ड डाई इज़ वेरी हाई. सैंड क्या इजीली अवेलेबल होता है, उसमें थोड़ा क्या एडिटिव्स और बाइंडर मिक्स किया तो कास्टिंग आप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन मेटल मोल्ड कास्टिंग में क्या है, उसका जो ग्राइंडिंग करना पड़ता है, उसका एक्यूरेट डाई बनाना पड़ता है, मशीनिंग कॉस्ट इंक्रीज होता है, मेटल का कॉस्ट इंक्रीज होता है. सो स्टार्टिंग जो मोल्ड बनाने का, जो मेटेलिक मोल्ड बनाने का कॉस्ट है वो थोड़ा हाई रहता है कंपेयर टू सैंड. नॉट सुटेबल फॉर द स्टील एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स एलॉयज. ये जो है नॉन फेरस मेटल के लिए ओके है. एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जो मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है थोड़ा कम रहता है इससे, किस मेटल से. ओके, स्टेनलेस स्टील से और माइल्ड स्टील से, डक्टाइल स्टील से, गन मेटल से थोड़ा उसका टेम्परेचर कम रहता है मेल्टिंग पॉइंट, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और जल्दी सॉलिड हो जाता है. अगर आप इसमें स्टील के अंदर स्टील डालोगे तो क्या होगा, दोनों भी मेल्ट हो जाएंगे वहाँ पे, और डाई भी मेल्ट हो जाएगा, मोल्ड भी मेल्ट हो जाएगा मोल्टन मेटल के साथ, as well as molten metal भी मेल्ट हो जाएगा. so it is not suitable for such types of high steel which is having the high melting point, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है मेल्ट होने का, उसको सूट नहीं करता है. so that is the major disadvantage of this
मोल्टन मेटल, इसीलिए जो मेटेलिक मोल्टन्स जो रहते हैं नॉन फेरस को मैक्सिमम यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके गोल्ड के चेन्स, सिल्वर के ब्रेसलेट्स, रिंग्स जो रहते हैं उसका जो कास्टिंग निकालते हैं तो वो मेटेलिक स्टील में निकालते हैं। ओके, देन नॉट सुटेबल इकोनॉमिकली फॉर अ स्मॉल प्रोडक्शन। जो सोने का जो रहता है, ऐसे ऐसे जो छोटे 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 पीसीस रहते हैं नॉन फेरस मेटल के, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालने के लिए यूज़ होता है। बड़े बड़े कास्टिंग निकालने के लिए द मेटेलिक मोल्ड्स आर नॉट यूज्ड। ओके, फॉर द मास प्रोडक्शन इन ओवर हियर यू कैन टेक द पॉइंट दैट एडवांटेज भी होता है उसका, डिसएडवांटेज भी होता है। मास प्रोडक्शन में एडवांटेज किस लिए होता है, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन जो हायर मेल्टिंग पॉइंट के रहते हैं उसके मास प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते हो फॉर इकोनॉमिकली फॉर अ स्मॉल प्रोडक्शन। और जो उसका कॉस्ट रहता है जो छोटे प्रोडक्ट्स का उसका कम रहता है, इसीलिए मास प्रोडक्शन उसका ज़्यादा नहीं निकाल सकते। सो दैट इज़ व्हाट द मेजर डिसएडवांटेज इन द ग्रेविटी डाई कास्टिंग। अभी हम नेक्स्ट मोल्ड के पास जाएंगे, नेक्स्ट मोल्ड देखेंगे। सो द प्रेशर डाई कास्टिंग, देखो यहाँ पे अभी आप प्रेशर डाई, इज द डायग्राम विजिबल टू ऑल? डायग्राम दिख रहा है आपको? ओके, सो द प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या रहता है, देर आर टू टाइप हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। ओके, सो हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग मशीनिंग हैज शोन इज एन राउंड नेक रहता है, उसको एक मिनट आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो डायग्राम है दिस इज फॉर द कोल्ड चेम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग इट इज, एंड इट इज एन hot chamber pressure die casting it is। अभी हॉट चेम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग आप देखेंगे। हॉट चेम्बर में क्या रहता है, ऑब्वियसली ऑन द हॉट टेम्परेचर द कास्टिंग इज बिन रिमूव्ड। ओके, इन द कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग में क्या हो रहता है, उसका जो टेम्परेचर रहता है, सो द टेम्परेचर इन द कोल्ड डाई कास्टिंग इज वेरी not you can say the very cold, but on the room temperature it works the cold die casting। okay, now you can see द कंस्ट्रक्शन देखो आप पहले इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा रहता है, देन विल गो फॉर द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रिक्स का अंडरग्राउंड एक ब्रिक्स का चेम्बर बनाया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एन हीटिंग चेम्बर। देखो आप यहाँ पे ये जो चेम्बर है ब्रिक्स का, ओके, सो इट इज कॉल्ड एज एन हीट चेम्बर। यहाँ पे अंडरग्राउंड रहता है, ओके, अदरवाइज ऑन द प्लेटफॉर्म पे भी रहता है। ओके, डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन, और जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से। इस अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे एक बर्नल दिया है। बर्नल से क्या होता है, फायर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका जो फायर रहता है वहाँ बर्नल से फायर अंदर हीट करते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी द मेटेलिक पॉट इज देयर। इस एक मेटल का एक पॉट रहता है इस शेप का, मेटल का पॉट है। देखो आप यहाँ पे, ये जो है मेटल का पॉट है, जिसमें जो मटेरियल आप मेल्ट करने वाले हो, जो स्टील कॉपर जो कुछ भी है आप मेल्ट करने वाले हो, इसमें रखा जाता है। ये मेटल का पॉट रहता है, इसके चेम्बर के ऊपर मेटल का पॉट रहता है। ओके, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक इस शेप का आपको एक गोस नेक मिलेगा। ओके, ये भी मेटल का ही रहता है, गोस नेक। ओके, उसको गोस नेक बोलते हैं, नेक बोलते हैं, नेक। यू कैन सी हियर गोस नेक, गोस नेक। ओके, सो
इसको ऑपरेटिंग लिंक से कनेक्ट किया जाता है और इसके ऊपर एक एयर पाइप रहता है, एयर वैक्यूम प्रेशर पाइप रहता है। इस गोस नेक को कनेक्ट किया है यहाँ पे मेटेलिक डाई से। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर देयर इज एन इजेक्टर पिन इज देयर, एक मूवेबल डाई है और एक फिक्स डाई है और एक स्प्योर है। ओके, सो दिस इज व्हाट द सिंपल कंस्ट्रक्शन इज देयर ऑफ दिस हॉट चेम्बर डाई। अभी इसके स्टेप्स इन्वॉल्व्स और इसमें क्या क्या प्रोसीजर है आप हम देखेंगे। ओके, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसे। देखो, फर्स्ट स्टेप, अ पायोट कास्ट आयरन गोस नेक। ये जो गोस नेक है वो कास्ट आयरन का बनाया हुआ है। is submerged in the reservoir of the molten metal where the enters and fills the gauze neck by the gravity. Okay, second step में क्या होता है, gauze neck is raised with the help of a link and the neck part of a gauze neck is been connected to the sphere of the fixed part of a die. Compressed air is then blow from the top through the force the liquid metal into the cavity. देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, अगर इसमें फर्नेस का काम और प्लस पोरिंग का काम प्लस सॉलिडिफिकेशन काम सब एट अ टाइम एक ही जगह पे होता है। देखो आप, आई विल सिंपल लैंग्वेज में आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ इट इज़ बीन देयर। ये जो मेटेलिक पॉट है, इसमें जो रॉ मटेरियल डाला रहता है और स्क्रैप मटेरियल डाला रहता है जिसको मेल्ट करना है। यहाँ से बर्नर से फायर इंट्रोड्यूस किया जाता है। फायर इंट्रोड्यूस होने के बाद इस हीटिंग चेम्बर में हीट जनरेट हो जाती है। जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है, इस मेटेलिक पॉट और क्रूजेबल उसको बोलते हैं, उसमें मेटल मेल्ट होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे मेटल मेल्ट होता है, कंप्लीट मेटल मेल्ट होने के बाद ये जो गोस नेक है जो कास्ट आयरन का बनाया है, इसको इसमें डुबाते हैं। डुबाने के बाद क्या होता है, जो लिक्विड मेटल होता है वो इसके अंदर भर जाता है। ये जो लिक्विड मेटल है वो इसके अंदर भर जाता है। ये जो लिक्विड मेटल है वो इसके अंदर भर जाता है, इस नेक के अंदर भर जाता है। इस नेक के अंदर भरने के बाद ऑपरेटिंग लिंक जो है इससे इस नेक को ऊपर उठाते हैं। जैसे जैसे ये नेक ऊपर जाता है, वो जो स्प्योर के पास आके जब कनेक्ट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, यहाँ से कंप्रेशन से एयर का प्रेशर दिया जाता है। जैसे जैसे एयर का प्रेशर जनरेट होता है वैसे वैसे इसके अंदर का जो लिक्विड मेटल रहता है वो आगे पुश होते जाता है। जैसे जैसे लिक्विड मेटल पुश होते जाता है विथ हाई प्रेशर ऑफ एन एयर, इट एंटर्स बाय द स्प्योर इनटू द मोल्डिंग बॉक्स एंड फिल दिस कैविटी। अभी यहाँ पे जो कैविटी है आप देख सकते हो, ये जो कैविटी है सी शेप में है, सी शेप का कैविटी है, कुछ इस तरह का कैविटी है। मतलब कास्टिंग आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही बाहर आने वाला है, सी शेप का। सो इसके अंदर ये पूरा भर जाता है। भरने के बाद देन व्हाट इज बीन डन, देन दिस मोल्डिंग बॉक्स इज बीन अलाउड फॉर द सॉलिडिफिकेशन। ओके, दैट मोल्टन मेटल इज बीन अलाउड फॉर द सॉलिडिफिकेशन के लिए अलाउड करते हैं। इस बॉक्स को निकालते हैं, फिर बाद में ये जो नेक्स्ट बॉक्स लाते हैं, उस नेक्स्ट बॉक्स को फिर नेक को कनेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर लिक्विड मेटल पोर करते हैं। फिर नेक्स्ट बॉक्स लाते हैं, सो उस नेक को इस साइड पे कनेक्ट करते हैं और उसमें वापस से एक लिक्विड मेटल एंटर करते हैं। ऐसे करके दे रिमूव्स 100-200 as much quantity they required the molding box. Okay, then once the complete quantity of the molding box are filled with the molten metal, that molten metal starts to solidified within that molding box. ओके, आपको जितने क्वांटिटी के मोल्डिंग बॉक्स बनाने हैं, कास्टिंग बनाने हैं, उसने मोल्डिंग बॉक्स उसके अंदर मोल्टन मेटल पोर करते जाते हैं इस हिसाब से। अगर एक फिल होने के बाद उसको निकाल के रखते हैं, दूसरा लाके नेक को जॉइंट करते हैं, उसके अंदर मोल्टन मेटल फिल करते हैं, फिर उसको निकाल के साइड रखते हैं, फिर नया वाला लाके जॉइंट करते हैं नेक को, फिर उसके अंदर मोल्टन मेटल फिल करते हैं। इस हिसाब से आपको जितने क्वांटिटी के मोल्डिंग बॉक्स चाहिए उतने कास्टिंग आप निकाल सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, एक मोल्टन मेटल मोल्डिंग बॉक्स के अंदर भरने के बाद क्या होता है, जो लिक्विड मेटल रहता है वो सॉलिड होने को स्टार्ट हो जाता है, जैसे
जिस मटेरियल के हिसाब से उसका टाइमिंग रहता है उस टाइमिंग के हिसाब से वो सॉलिड होता है। वंस द कंप्लीट मोल्टन मेटल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, जब वो कंप्लीट सॉलिडिफाइड हो जाता है, पूरा सॉलिड हो जाता है, उस समय क्या करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इजेक्टेड पिन है, यहाँ पे एक इजेक्टेड पिन है। इजेक्टेड पिन मतलब एक लॉकिंग पिन रहता है जो दोनों को ज्वाइंट करता है। किसको ज्वाइंट करता है? एक फिक्स डाई को ज्वाइंट करता है, एक मूवेबल डाई को ज्वाइंट करता है। ये जो फिक्स डाई है वो स्पीयर को फिक्स्ड ज्वाइंट रहता है। ओके, सो इस पिन को एक सेंटर में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पिन रहता है, एक रॉड रहता है, उस रॉड को निकालते हैं। रॉड को निकालने के बाद फिक्स डाई और मूवेबल डाई दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद इसके अंदर का जो कास्टिंग रहता है उसको बाहर निकाला जाता है। सो दिस इज व्हाट द सिंपल वर्किंग ऑफ एन हॉट डाई चेम्बर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, सो इस तरह की जो मटेरियल हॉट डाई और कोल्ड डाई चेम्बर कास्टिंग प्रोसेस है, ये नॉन फेरस मेटल के लिए मैक्सिमम यूज किया जाता है। जस्ट आई हैव टोल्ड द मेटेलिक मोल्ड्स आर यूज्ड फॉर नॉन फेरस मेटल। ओके, अभी आप जाएंगे कोल्ड चेम्बर के पास। कोल्ड चेम्बर, हाउ डज द कोल्ड चेम्बर वर्क्स? Now see in the cold chamber, you can see over here द कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल चेम्बर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, सी नो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, कोल्ड चेम्बर का डायग्राम। इज इट विजिबल नो? कोल्ड चेम्बर का डायग्राम दिख रहा है ना? ओके, सो देखो इस कोल्ड चेम्बर का डायग्राम जो है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है। ओके,